Lesson 1, ICT and its impact. ICT means Information and Communication Technology. ICT is a general term that combines communication technology and information technology. ICT today enables users to access, store, transmit and manipulate information as fast as possible. आईसीटी में हमारे पास दो टर्म्स हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। इन दोनों को हम कंबाइन कर देते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मतलब है हमारे पास कंप्यूटर रिलेटेड डिवाइसेस हैं, लाइक हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के। और कम्युनिकेशन में हमारे पास टेलीफोन आते हैं, मोबाइल फोन्स आते हैं, वायरलेस है या वायर्ड सिग्नल्स होते हैं। रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ आईसीटी। आईसीटी हैज़ हैड a huge impact on our society. It has revolutionized the way we work and live on a daily basis. आईसीटी का हमारे सोसाइटी पर, हमारे डेली लिविंग पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। There are many ways the ICT has had an impact on our day to day life. कई सारे तरीके हैं जिनके थ्रू हम आईसीटी हमें इफेक्ट करता है। One of the ways it has affected us is in our working environment. Another is our daily life at home. एक तरीका है जिस पे इसने हमें इफेक्ट किया है वो हमारा वर्किंग एनवायरनमेंट, और दूसरा तरीका है हमारे घर की लाइफ का। There are many different types of ICT we use at home and work, from computers to microwave. कई सारे तरीकों से, कई सारे मेथड से हम आईसीटी का डेली यूज करते हैं। ICT's impact on our personal lives. ICT has had a large impact on our lives at home, as it has affected the way we live our day-to-day lives. ICT is in our every room in our house, from the TV to the washing machine. Life has changed because nowadays you can find a machine that speeds up almost everything from housework to homework. हम देखते हैं कि हमारा जो टीवी है, हमारा जो वॉशिंग मशीन है, हमारे जो और डिवाइसेस है, वो उन सब में हमारे पास इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है। The way we deal with problems at home has changed. For example, if one gets ill, then apart from visiting a doctor, she tries searching for symptoms on the internet to gather more information. जैसे हम डेली लाइफ में आईसीटी का यूज़ कैसे करते हैं, इसने एग्जांपल दिया हुआ है। अगर हम बीमार हो जाते हैं तो हम डॉक्टर को विजिट करने की बजाय हम इंटरनेट पे हम उसके सिम्टम्स सर्च करना कोशिश करेंगे। Our shopping habits have changed the our shopping habits have changed, as now one can easily shop for items easily sitting at home. For entertainment, many more options are available. The ICT has also changed the way we communicate with others. There is becoming more and more ways to talk to people without being face to face with them. For example, mobile phones, social networking sites, wiki sites and forums. ये कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं जिनके थ्रू हम आईसीटी का हमारी डेली लाइफ में यूज करते हैं। So we can say that in our personal life, ICT has impacted our daily course, our entertainment options, our connectivity, our shopping styles, and many more. ICT skills needed at home are, हमें घर पे काम करना है तो क्या क्या आना चाहिए। ऑपरेटिंग मॉडर्न मशीन्स, जो आज की मशीनें हैं मॉडर्न जिनमें आईसीटी का यूज़ होता है, हमें ऑपरेट करना आना चाहिए। यूजिंग इंटरनेट, यूजिंग कनेक्टिविटी सॉफ्टवेयर लाइक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, यूजिंग वेरियस टाइप्स ऑफ सोशल मीडिया एटसेट्रा। ICT's impact on our work lives. ICT has hugely impacted our work lives too. You can now use ICT to manage a business and present information to clients and your colleagues. वर्क लाइफ में हम आईसीटी का यूज़ कैसे करते हैं, हमारे इंफॉर्मेशन क्लाइंट्स को दिखाने के लिए और हमारे कलीग्स को दिखाने के लिए। It can help to speed up work production and can provide high quality resources to complete work to the best of your abilities. ICT has made decision making much easier and faster by processing the data available. Productivity has increased and processing times has reduced. ICT has improved the way ICT has improved the way we work and allows to complete work faster.
आईसीटी के थ्रू हम डिसीजन ज़्यादा फास्ट कर सकते हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, टाइम कम होता है और हमारा काम जल्दी कंप्लीट होता है। ICT has made the entire world as a global market as now reach to any corner of the world is possible. हम घर बैठे या ऑफिस में बैठे ही पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं। Thus, nowadays we can see an artisan from a small village selling his her work online. मतलब एक छोटे से गांव का आदमी भी पूरे वर्ल्ड में ऑनलाइन अपने आइटम सेल कर सकता है। So we can say that in our work lives, ICT has impacted decision making capabilities, data availability, reach to any corner of the world is possible, better presentation tools, better connectivity of businesses to other businesses and clients. ICT skills needed at workplace are हमें ऑफिस के लिए क्या क्या आना चाहिए creating various types of documents such as text documents, spreadsheet, presentation, etc. Using internet for searching, sending and receiving emails, using connectivity softwares like video conferencing, using various specialized softwares and many more. ICT in our daily life. हमारे डेली लाइफ में आईसीटी हमें कैसे इफेक्ट करता है, इससे कुछ एग्जांपल देखेंगे। फर्स्ट एग्जांपल है ये पी आई वॉन सिस्टर आई बीट यूसुफ दिस टाइम। यूसुफ द वन फ्रॉम सऊदी अरेबिया हु प्लेज ऑनलाइन गेम्स विद यू। एग्जांपल दिया हुआ है ये ऑनलाइन गेमिंग का। ये सेकेंड एग्जांपल है यू डिड नॉट मूव आउट फॉर हाउस टुडे wasn't it the last day to pay fees? Dad, I have paid the fees online. हम ऑनलाइन फीस पेमेंट कर सकते हैं। थर्ड एग्जांपल दिया है नीता सॉरी आई वॉन्ट बी एबल टू मेक इट इन टाइम हाउ वुड यू देन बाई दैट ज्वेलरी आइटम। ज्वेलरी के बारे में बात कर रहे हैं ये। डोंट वरी रोशन आई विल प्लेस दैट ऑर्डर ऑनलाइन। इसमें ऑनलाइन शॉपिंग का एग्जांपल दिया हुआ है। फोर्थ है दादी सी द ट्रॉफी आई वॉन्ट टुडे इन स्कूल। आई एम सो हैप्पी फॉर यू डू ब्रिंग इट अलोंग व्हेन यू कम टू इंडिया। यहाँ पे ऑनलाइन बातें हो रही हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से। फिफ्थ एग्जांपल दिया हुआ है डैड आई हैव कलेक्टेड ग्रैंडपा रिपोर्ट फ्रॉम द क्लिनिक। ग्रैंडपा कहते हैं आई थिंक वी मस्ट टेक अ सेकंड ओपिनियन लेट मी स्पीक टू माय कजिन हुज हस्बैंड इज अ डॉक्टर। प्लीज गिव मी हिज नंबर आई विल व्हाट्सएप द रिपोर्ट टू हिम ही कैन देन गिव हिज ओपिनियन। यहाँ भी ऑनलाइन हमारा चैटिंग हो रही है। एंड सिक्स एग्जाम्पल दिया है मिस्टर वेंकट आर यू प्रिपेयर्ड टू डिलीवर द टॉक रेडी टू गो। यस सर आई एम। Please remember that your session will be aired, broadcast, and webcast simultaneously. Also, people can connect with you via Google Hangout, Twitter, chat, etc. यहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग की बात हो रही है। हम ऑनलाइन कुछ देखते हैं। These images above shows 6 different scenes, and I am sure that you must have identified what the scenes are about. जो सीन वन था ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेमिंग था, सेकंड था अबाउट ऑनलाइन ऑनलाइन पेमेंट, third is online shopping, fourth is video conferencing, fifth is media sharing, and sixth is about simultaneous use of different technologies to broadcast, webcast, etc. ये हमारे कुछ एग्जांपल दिए हमारी डेली लाइफ के जहाँ पे आईसीटी यूज होती है। All the above mentioned scenes are so common these days. All these scenes involve the use of computer technology and associated technologies. There are numerous other ways in which computers touch our lives and make it better. This illustrates the impact of computers in our day-to-day life. इनके यूज से हमें पता लगता है कि हमारे डे टू डे लाइफ में कंप्यूटर का यूज क्या होता है। We are surrounded by computers, be it washing clothes in washing machine or baking a dish via automatic recipe, central heating system, burglar alarm system, automatic doors, traffic light systems, lifts, etc. मतलब इन सब में किसी न किसी तरीके से हम कंप्यूटर यूज करते हैं।
Look around and you will find many more examples where computers and associated technology had invaded our lives and made it so simpler and easier. ICT tools. ICT tools are devices or objects used in information and communication technology. आईसीटी में हम जो भी डिवाइस या ऑब्जेक्ट्स यूज करते हैं वो होते हैं आईसीटी टूल्स, जैसे कंप्यूटर, सेल फोन, इंटरनेट, ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सॉफ्टवेयर, रेडियो, टेलीविजन, लैपटॉप, टैबलेट, ऐसे एग्जांपल दिए हुए हैं। इनके बारे में पढ़ेंगे क्या करके। कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप्स, these are the electronic devices that have a specific processor and that work as per programs and softwares loaded on them. कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं कंप्यूटर और लैपटॉप जिनमें प्रोसेसर होता है और प्रोग्राम्स और सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग ये काम करते हैं। While the term computer refers to a desktop computer, laptop refers to a lighter version of computer that can fit on your lap. Hence the name. कंप्यूटर का मतलब जनरली जो बोलते हैं वो डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है और लैपटॉप एक छोटा कंप्यूटर होता है जिसको हम लैप पे रख के यूज कर सकते हैं और इसीलिए इसको बोलते हैं लैपटॉप। लैपटॉप्स कैन इजीली लैपटॉप्स कैन इजीली बी कैरिड आउट टू अदर प्लेसेस एज वेल। लैपटॉप को हम इजीली कहीं ले जा भी सकते हैं। स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट्स। The smartphone is a handheld device that has combined cellular telephony with an integrated computer like tiny processor, operating system, and ability to access internet and run software applications. स्मार्टफोन एक छोटा सा डिवाइस होता है जिसमें सेलुलर टेलीफोनी मीन्स हम टेलीफोन कर सकते हैं विद एन इंटीग्रेटेड कंप्यूटर। साथ में इसमें कंप्यूटर भी इंटीग्रेटेड होता है जिसमें एक छोटा सा प्रोसेसर होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसके थ्रू हम इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं और कुछ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस में मोबाइल ऐप्स रन कर सकते हैं। A tablet is a cousin of smartphone which is capable of doing nearly all that a smartphone can do. टैबलेट भी स्मार्टफोन जैसे ही होता है लेकिन कुछ डिफरेंस होते हैं इसमें। Tablets are larger in size than mobile phones and some tablets do not provide cellular telephony. कुछ टैबलेट से हम फोन नहीं कर सकते। Radio and TV. Radio is the oldest tool and provide entertainment via audio only to masses. These days, even online radios are available. TV is the audio-visual medium that can play audio as well as video. There are multiple TV channels available these days, catering to diverse interest of the people. हम सबको पता है रेडियो टीवी के बारे में क्या होते हैं ये। Internet and email. The internet refers to the worldwide network of interconnected servers that are connected to many networks. इंटरनेट का मतलब है कि हमारे पास वर्ल्ड वाइड में जितने भी कंप्यूटर हैं, सर्वर्स हैं, वो सारे आपस में डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। यूजिंग इंटरनेट one gets connected to worldwide network of computers and can access information from any part of the world. इंटरनेट का यूज करके हम पूरे वर्ल्ड वाइड नेटवर्क से जुड़ जाते हैं और वर्ल्ड के किसी भी पार्ट से कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं। The email is a facility of internet which allows one to send mails electronically in a flash of second. ईमेल एक फैसिलिटी है जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रॉनिक मेल कुछ सेकंड्स में ही भेज सकते हैं। मोबाइल ऐप्स। A mobile app is a special type of software written keeping in mind limited resources of the mobile phones such as limited battery, limited memory, small screen size etc. मोबाइल एक सॉफ्टवेयर होता है जो मोबाइल के लिमिटेड रिसोर्सेज जैसे मोबाइल की छोटी सी स्क्रीन होती है, थोड़ी सी बैटरी होती है, लिमिटेड मेमोरी होती है, इनको ध्यान में रख के बनाए जाते हैं। All the functions that you do through mobile phones is possible because of mobile apps. हम जो भी काम कर सकते हैं मोबाइल फ़ोन में वो सारे मोबाइल ऐप्स के थ्रू ही पॉसिबल होते हैं। मोबाइल ऐप्स आर ऑफ वेरियस टाइप्स। कॉमन कैटेगरीज आर लाइफस्टाइल मोबाइल ऐप्स, सोशल मीडिया मोबाइल ऐप्स, यूटिलिटी मोबाइल ऐप्स, गेम्स, प्रोडक्टिविटी मोबाइल ऐप्स, न्यूज़। इनके बारे में देखेंगे।
A lifestyle app is one that accelerates or supports the individual facets that define your lifestyle, such as fitness, food, जो हमारी डेली लाइफ को मतलब सपोर्ट करते हैं, उनको देखते हैं, उनको बोलते हैं लाइफस्टाइल मोबाइल ऐप्स। जैसे ये है उबर, स्पॉटिफाई, म्यूजिक के लिए, फिटनेस के लिए। सोशल मीडिया मोबाइल ऐप्स, social media apps are apps that help you connect with your online social circle. Utility, utilities are the types of mobile apps that provide utility functions such as reminder, weather information. यूटिलिटी फंक्शंस के लिए होते हैं कुछ ऐप्स, ये प्री इंस्टॉल होते हैं फ़ोन में। गेम्स होते हैं। प्रोडक्टिविटी मोबाइल्स ऐप्स हेल्प देयर यूजर अकम्प्लिश अ टास्क, जैसे एक्सेल है, भीम है, वर्ड है। न्यूज़ के लिए ऐप होती हैं जो हमें न्यूज़ प्रोवाइड करवाती हैं। स्मार्टफोन्स वर्सेस टैबलेट्स वर्सेस लैपटॉप्स, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? तीनों ही एक टाइप से कंप्यूटर कह सकते हैं, बट तीनों में फिजिकल डिफरेंस होते हैं। फर्स्ट पॉइंट है पोर्टेबिलिटी। स्मार्टफोन्स आर वेरी लाइट, वेरी इजी टू कैरी। Tablets are thin and light but heavier than a smartphone, but still easy to carry. Laptops are much heavier and it takes effort to carry them. स्मार्टफोन छोटे से होते हैं, इजीली कैरी कर सकते हैं, पॉकेट में डाल के कहीं भी ले जाओ। टैबलेट थोड़े से बड़े होते हैं स्मार्टफोन से, लेकिन फिर भी उनको कैरी करना इजी होता है। इन दोनों की कंपैरेटिवली लैपटॉप थोड़े भारी होते हैं और उनको थोड़ी मेहनत लगती है। फंक्शनैलिटी, स्मार्टफोन की स्क्रीन छोटी होती है, टैबलेट की थोड़ी बड़ी होती है और लैपटॉप की इन दोनों से बड़ी होती है। ईज या डिफिकल्टी इन वर्किंग, स्मार्टफोन्स is a small computer in hands with cellular telephony, very easy to work with in a stable or mobile environment. स्मार्टफोन को हम बैठ के यूज़ करें चाहे चलते हुए यूज़ करें, हम इजीली काम कर सकते हैं। टैबलेट offers better display with smartphones productivity. A tablet is easy to just turn on and use in any environment. सेम जैसे स्मार्टफोन होता है वैसे टैबलेट को भी हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, इसको यूज़ करना भी इजी होता है। लैपटॉप रिक्वायर्स अ स्पेसिफिक प्लेस टू वर्क, बट लैपटॉप पे काम करने के लिए एक स्पेसिफिक जगह की जरूरत होती है ताकि हम बैठ सकें। इट इज़ कंपैरेटिवली डिफिकल्ट टू वर्क विद लैपटॉप हैविंग अ माउस इन अ फास्ट मूविंग कार। जैसे मोबाइल में और टैबलेट में एक चलती हुई कार में हम इजीली काम कर सकते हैं, बट लैपटॉप में थोड़ा मुश्किल होता है। बैटरी लाइफ, स्मार्टफोन्स हैव स्मॉलर बैटरी लाइफ, rely only on mobile batteries. Most tablets have battery life that is far better than laptop, but work with only mobile batteries. इन दोनों में मोबाइल बैटरीज ही होती है, उस पर डिपेंड करते हैं ये। लैपटॉप फेयर बेटर ऑन पावर अवेलेबिलिटी एज बोथ बैटरी एंड इलेक्ट्रिसिटी पावर ऑप्शंस आर अवेलेबल। लैपटॉप में हमारे पास बैटरी ऑप्शन भी होता है, इलेक्ट्रिसिटी ऑप्शन भी होता है। फ्लेक्सिबिलिटी, स्मार्टफोन इज मैक्सिमम फ्लेक्सिबल, टैबलेट भी फ्लेक्सिबल होते हैं। अ टैबलेट सिट्स समवेयर बिटवीन द स्मार्टफोन एंड लैपटॉप, बट लैपटॉप ऑफर्स लेस फ्लेक्सिबिलिटी। प्रोडक्टिविटी, smartphone productivity is limited because of many issues like limited battery power, smaller screen size, less resources. स्मार्टफोन की प्रोडक्टिविटी सबसे कम होती है, टैबलेट की स्मार्टफोन से ज़्यादा होती है बट लैपटॉप से कम होती है, और लैपटॉप की सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि इसके पास मेमोरी प्रोसेसर की लिमिट नहीं होती। तो ये था हमारा आईसीटी। थैंक यू।